हेलो सरफराज कठेरे चैनल में आप सभी का खुश आमदीद। हामिद अंसारी ने जैसे भैंस की पूंछ पे पाँव रख दिया हो। संघ के नेता लोग बौखला गए हैं। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद शाहनवाज, नरोत्तम मिश्रा और अन्य कई लोग लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। जैसे उन्होंने कोई अजूबा सा बात कह दिया। उन पर मीडिया की जो हिंदूवादी सोच है वो भी साफ साफ दिख रही है। कोई भी उन पर सही से चर्चा नहीं कर रहा और सारे लोग उनको लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने हकीकत बोलकर कोई कोई गुनाह कर दिया। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिन पे उनकी की स्पीच जो 4 मिनट लगभग की थी उस पर एक विस्तार से चर्चा किया था। आप अलग अलग तरह के हेडलाइंस देख रहे हैं। आज मैं एक न्यूज़ एक्स के पर चर्चा करना चाहूँगा। न्यूज़ एक्स लगातार इसको उठा रहा है। जब हमीद अंसारी उस सेमिनार में गए नहीं गए, एक बार बार कह रहा है आईएमसी पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, उसके सेमिनार में क्यों गए। जबकि हकीकत क्या है वो आप जो होस्ट श्रव्या तारेपल्ली कर रही थी उनसे आप सुन सकते हैं। उनके इस वीडियो में साफ वो कह रही हैं कि 17 ऑर्गेनाइजेशन जो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं वो भारत की सेकुलर डेमोक्रेसीज पर हो रही लगातार चोटों से चिंतित है। उन्होंने कई सारे उदाहरण भी दिए कि पिछले एक महीने में ही क्या क्या भारत में घटनाएं घट चुकी है, जिस पे यूएस रिलीजियस फ्रीडम से लेकर सारे लोग बोल रहे हैं। और जो एक जेन्युइन कंसर्न है, कोई भी देश, कोई भी दुनिया का सही आदमी इन चीज़ों पे कंसर्न शो करेगा। आप भारत को एक तरफ से सेकुलर डेमोक्रेसी की बात बोलते हैं तो दूसरी तरफ जब उसको कोई हिंदू राष्ट्रवाद की बनाने के लिए करेगा, जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशंस पर जब चोट पहुंचाने की बात करेगा, जब कोई उसे बदलने की बात करेगा, जब कोई उसे अलग अलग तरह से कानून को हाथ में लेने वालों को पे नरमी बरतेगा तो सवाल उठना जायज़ है। Everyone, and welcome to our January 26th special congressional briefing. My name is Sravya Tarepalli, and I am a board member of Hindus for Human Rights, an organization dedicated to advocating for human rights and opposing Hindu nationalism and caste from a Hindu faith perspective. This special briefing is organized every 2 weeks and is co hosted by 17 organizations. Today's special briefing celebrates India's Republic Day and the Constitution of India, which established India as a secular democracy in 1950. This constitution was drafted under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar, a stalwart Dalit leader in India. It established India as a pluralist, rules based democracy where all Indians, regardless of religion, caste, community, or gender, were equal. This is the ideal that the founders of India aspired to, and it is an ideal we honor and celebrate today. However, a clear and present danger to India's constitution has emerged since Prime Minister Narendra Modi's Hindu right wing government came to power in 2014. The violence being done to democracy, to secularism, and to minorities in India every single day has escalated over these years. Just last month, right wing Hindu extremists attacked multiple Christmas Day celebrations. Also, last month, Hindu extremists called for a genocide of 2 million Muslims. Last summer's Pegasus revelations and the recent Bulibai scandal show just how dangerous India is becoming for journalists and activists simply for being critical of the Modi regime. India's constitution is one of the world's most progressive documents, but under continuous assault, it now needs to be defended by the people of India and India's allies. As a Hindu and part of a religious tradition that believes all human beings are inherently divine, I believe it is my religious duty to speak out when oppressed people face atrocities. As an Indian American, I feel a special obligation to stand up for democracy in both nations. Many Indian Americans share my feeling. As Americans, we have the power to take foreign policy measures that can make a substantive difference in promoting human rights abroad and empowering grassroots activists. We have a great lineup of panelists today. We are joined by, among others, U.S. Senator Ed Markey, U.S. Congressman Jim McGovern, who is the longstanding co-chair of the Tom Lantos Human Rights Commission of the U.S. House of Representatives, U.S. Congressman Andy Levin, who is a member of the House Foreign Affairs Committee and the Tom Lantos Commission, U.S. Congressman Jamie Raskin, who is the chair of the House Subcommittee on Civil Rights and Civil Liberties, Nadine Menza, who is chair of the United States Commission on International Religious Freedom, which has since 2020 recommended that US government sanction India for religious persecution, Hamid Ansari, India's former vice president,
who was a distinguished former diplomat and scholar, Amina Gharib Fakim, former president of Mauritius, and Kerry Kennedy, the president of Robert F. Kennedy Human Rights. आप सबसे पहले न्यूज़ एक्स के एंकरों का सुनिए जो आज एक नया शोशा निकाले हैं क्या कि न्यूयॉर्क की गवर्नर ने भारत की तारीफ की और हामिद अंसारी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसके जो हेडलाइंस देखने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा। आप फिलहाल उन चीज़ों को देखिए। All right, opening the Pandora's box again. A day after Hamid Ansari's comments criticizing the Indian democracy at the IAMC event, New York Governor Kathy Hochul has said India adopting its constitution has changed the world for the better and forever. What Hamid Ansari in fact said the other day about our country, and also how New York has responded by saying that 26 January is a memorable day because coming to terms with independence for India has also made the world a better place. न्यूज़ एंकर ने जो बोला लगभग उसने सही बात बोला, लेकिन आप जो न्यूयॉर्क की मेयर हैं उनकी बातों को आप विस्तार से सुनिए, फिर उस पर बात करेंगे कि उन्होंने हामिद अंसारी की बातों को ही बोला है, ना कि कोई अन्य बातों को बोला है। वो हामिद अंसारी की तरह सेकुलरिज्म पे बिलीव कर रही हैं, वो डेमोक्रेसी पे बिलीव कर रही हैं। Hello everyone, I'm Governor Kathy Hochul. On behalf of all New Yorkers, I want to send well wishes to everyone celebrating Indian Republic Day. On January 26, 1950, the world changed for the better as India adopted its constitution and officially became an inclusive, secular, and pluralistic republic just 3 years after winning independence from the British Empire. So this is not only a time to reflect on the historic achievement of that day, but highlight the contributions that the Indian community has made throughout the world every day since. Today, India is the world's largest democracy built on values that are aligned with so many of our own: freedom, inclusivity, equality, and prosperity. These are shared ideals, and we pursue them together. New York is proud to be home to nearly 400,000 Indian Americans, all of whom contribute so much to our great state. And I know that impact will only continue to grow. In my State of the State speech, I announced that this was a whole new era for New York, one in which we'll create a fairer, better, more inclusive version of the American dream, what we call the New York dream. Each and every member of this community will play a role in ensuring that we do by helping us realize that dream, but also fulfilling it for themselves. Thank you for all you do for New York, and happy Indian Republic Day. तो जैसा आपने सुना क्या कि न्यूयॉर्क की मेयर कह रही हैं कि भारत एक सेकुलर डेमोक्रेसी है और संविधान इसका बहुत अच्छा है, ये एक इंक्लूसिव है। हामिद अंसारी ने भी यही कहा क्या कि भारत एक का संविधान बहुत अच्छा है। हम इसके जो होता ना, उन्होंने अपनी पहले दूसरे तीसरे में इसी पे विस्तार से चर्चा की थी, जो कि मोहतरमा भी बोल रही हैं। वो ये जो एंकर जो कह रहे हैं क्या कि हामिद अंसारी के ऑपोजिट बोली, पहली बात इस न्यूज़ चैनल और इस एंकर को इतना भी नहीं पता है क्या कि ये जो फोटो जो दिख रहा है जिस पे लिखा हुआ न्यूयॉर्क गवर्नर लेडीज लॉर्ड्स इंडिया यूएस कांग्रेसमैन कंसर्न, ये फोटो अपोजिट है। ये न्यूयॉर्क की गवर्नर जो महिला है उनके बदले यूएस कांग्रेसमैन का फोटो और कांग्रेसमैन के बदले न्यूयॉर्क के गवर्नर का फोटो लगा दिया गया है। जो मीडिया को इतनी भी तमीज़ नहीं है, जिस मीडिया के लोगों को इतना भी समझ नहीं है कि कौन क्या है और उसके नीचे क्या कैप्शंस देना है, तो उसके बारे में क्या। और दूसरी बात देखिए कि हेडलाइंस है न्यूयॉर्क गवर्नर गिफ्टिंग रिप्लाई टू अंसारी हेल्स इंडिया, कि न्यूयॉर्क की गवर्नर ने हामिद अंसारी को रिप्लाई दिया और इंडिया को प्राउड किया। सही बात है क्या कि इंडिया की तारीफ़ की, जो कि हामिद अंसारी ने भी तारीफ़ किया था। हामिद अंसारी ने भी कहा था कि डेमोक्रेसी भारत का जूझ है, मतलब उसका समरी है। भारत सेकुलर कंट्रीज थी, लेकिन हाल फिलहाल में जो हिंदू नेशनलिज्म, जिसको उन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म कहा, हम लोग समझ सकते हैं कि कल्चरल नेशनलिज्म क्या है, इसके बात कौन करता है और कल्चरल नेशनलिज्म को किस तरह से भारत में देखा जाता है, वो कहा, उसको क्रिटिसाइज किया। तो यही बात न्यूयॉर्क की गवर्नर ने भी कहा। तो दरअसल न्यूयॉर्क की गवर्नर ने जो बात कही वो हामिद अंसारी को सब्सटेंशिएट किया, उसको इनकार नहीं किया। और हामिद जो आरएसएस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुषों नेहरू,
महात्मा गांधी इत्यादि पर लगातार क्रिटिसाइज करता है और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को सब सेकुलर के बदले वो कहता है क्या कि इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म डाला अमेंडमेंट के थ्रू, 42 अमेंडमेंट के थ्रू, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारत सेकुलर डेमोक्रेसी नहीं था, भारत को सेकुलर डेमोक्रेसी एक के बदले हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो न्यूयॉर्क की गवर्नर ने इस चीज़ों को गलत कहा। न्यूयॉर्क की गवर्नर ने साफ कहा कि भारत एक सेकुलर डेमोक्रेसीज है और यहाँ रूल एंड बेस्ड लॉ है, ना कि डिस्क्रिमिनेशन। जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेटरी है। और जहाँ तक रही बात है रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन से, कोई भी जो होता है ना कि वहाँ पे जब भारतीय कुछ करेगा तो उसकी जो बेस्ट चीज़ें बोलेगा, आप उसको मोदी की तारीफ, मोदी इंडिया की तारीफ नहीं है। ना हामिद अंसारी ने मोदी की तरह कहा कि 2014 के पहले भारतीयों को शर्मिंदगी महसूस होती थी, अब प्राउड फील कर रहे हैं। जबकि न्यूयॉर्क की गवर्नर ने जो बोला है कि भारतीय एक प्राउड कम्युनिटी है, ये प्राउड कम्युनिटी 2014 के बाद नहीं बना है, पहले से बना हुआ था। और न्यूयॉर्क की गवर्नर ने अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया कि भारत के लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया। और वो उन्होंने कहा क्या कि वो खुद ही बहुत सारे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए उन लोगों से मिली हैं और उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं। काश एंकर महोदय जाकर मिलते इस न्यूयॉर्क गवर्नर से, आप पूछते क्या कि आप भारत के संविधान को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करती हैं या भारत के संविधान को आप सेकुलर डेमोक्रेसी के बदले रिलीजियस बेस्ड डेमोक्रेसी बनाना को समर्थन करती हैं, तब वो बताती कि वो क्या चाहती है। उन्होंने साफ आरएसएस की आइडियोलॉजी को, जिसकी क्रिटिसाइज इनडायरेक्टली हामिद अंसारी ने किया, उसी तरह इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज न्यूयॉर्क की गवर्नर ने भी किया। लेकिन भारत की मीडिया तो अजूबी है, अनोखी है, इसे मुस्लिम बैशिंग करने का एक आदत है। तो इसलिए जो 17 ग्रुप इंस्टीट्यूशन ने मिलकर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, उसको पाकिस्तान बेस्ड और आईएएमसी उसका एक घटक है, तो उस पर हमला कर कम्युनलाइज करना चाह रहा है। आप जो भी कीजिए, दुनिया देख रही है, दुनिया के अखबार लिख रहे हैं, दुनिया की इदारे इंस्टीट्यूशन, यूएन हो, यूएस के रिलीजियस फ्रीडम हो या और भी सारी इंस्टीट्यूशंस भारत को देख रही है। कल्चरल राष्ट्रवाद से इतनी ही दिक्कत है तो आरएसएस को चाहिए कल्चरल राष्ट्रवाद से इनकार करे और सिविक नेशनलिज्म, जिसकी बात हामिद अंसारी कर रहे हैं, उसको माने। अगर आरएसएस या भारतीय मीडिया को भारत की इतनी ही चिंता है तो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उस पर सवाल उठाए और उसको रेक्टिफाई करे। जो हेट स्पीचेस हो रहे हैं, जो माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं, उन चीज़ों को रेक्टिफाई करे। आप जब तक इन चीज़ों को नहीं कीजिएगा, जो भी सेंसिबल आदमी है, चाहे भारत का है चाहे भारत के बाहर का है, वो क्रिटिसाइज ही करेगा। भारत की इमेज 2014 के पहले जो रूल बेस्ड लॉ थी, जो सेकुलर डेमोक्रेसी थी, उसके तहत है, ना कि 2014 के बाद जो कि मोदी जी के भाषण का जुज था जो उन्होंने सियोल में दिया था। अगर भारत की मीडिया और आरएसएस वाकई देश को चाहती है तो इन चीज़ों को रेक्टिफाई करे। भारत का इमेज 2014 के पहले का जो इमेज था उसके अनुसार है, ना कि 2014 के बाद का। 2014 के बाद भारत की इमेज दुनिया में लगातार घट रही है। आप पिछले 2 साल का ही अगर न्यूज़ आर्टिकल देखिए तो मैक्सिमम कवरेज गलत रिपोर्टिंग बता रही है। भारत पे डेमोक्रेसी पे कंसर्न हो रहा है। जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें भी भारत का स्थान नीचे जा रहा है। इसलिए भारत के हित में यही होगा कि हम भारतवासी मिलकर भारत को एक अच्छा देश बनाएं, ना कि जो कम्युनल पोलराइजेशन जो हो रही है उसके ओर ले जाए। Although he was the vice president of this country, he did have problems with it. Well, why did he accept the post? Why did he in fact enjoy all those privileges? We'll get to इस एंकर की सबसे खासियत रही क्योंकि वो सवाल उठा रहा है कि हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति क्यों बने जबकि भारत इतना गंदा था। तो भारत के उपराष्ट्रपति वो 2007 से 17 तक थे। पहली बार 7 से 12, दूसरी बार 12 से 17 तक थे, जबकि भारत की डेमोक्रेसी पर दुनिया गर्व कर रही थी, भारत के सेकुलरिज्म पर दुनिया गर्व कर रही थी। उस समय भारत के चीज़ों को दुनिया एक
आइडल की तरह देख रही थी। भले ही मोदी के अनुसार भारत होने पे लोग शर्मिंदा महसूस होते थे, ऐसी बात नहीं थी। दरअसल हकीकत आज है कि भारतीय होने पे विदेशों में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। दुनिया की हर मीडिया गलत तरह से देख रही है। हर सेंसिबल आदमी सवालों को उठा रहा है। उम्मीद करते हैं कि लोगों के आंखों पर पड़ा पट्टी उठे और भारत एक अच्छा देश बने, ताकि दुनिया में हमारी पहचान अलग बने।